the outer orbital complexes, and in this let's focus with the word outer. Outer orbitals किसको, this suppose we are saying that a particular सेंट्रल मेटल एटम whose spinel quantum number maximum अगर आ रहा है 4 आ रहा है, और तो अगर हम आउटर की बात करें तो ये हमारा ND ही रहे, ठीक है, मीन्स अगर 4 है तो इट विल शुड बी 4D. It should not like the previous case which we have done in the inner orbital complexes. So that case is your outer orbital. So central metal atom or the ion which you are choosing for the formation of the complex should contain these outer or d orbitals. That is very important. Now the point is that what type of hybridization they should possess, that is sp3d2 hybridization, means 1 s orbitals, 3 p orbitals and 2 d orbitals are participating in the hybridization. Now they must have large number of unpaired electrons, right? So definitely if they are having the higher numbers of unpaired electrons, they will be paramagnetic in nature, ठीक है. Rare of the rare you will see about the diamagnetic, but 100% you will see that they are having unpaired electrons more, then it means they are what, they will be paramagnetic in nature. Then high spin, that's why they are called as high spin complexes, or you can say they are also known as spin-free complexes. These are few examples which I have written. So from that you must understand it's also coming in the octahedral parts. अगर हम ये condition देखते हैं sp3d2, so if you see how many orbitals we have checked it out, 1 3 4 5 6, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स इनका कोऑर्डिनेशन नंबर CN नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट विल बी 6. तो ये आपका ऑक्टाहीड्रल ही स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. ऑक्टाहीड्रल को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि 4 लिगेंड्स ऐसे रहेंगे, ठीक, दिस इज़ बीन द केस, और 1 लिगेंड मस्ट बी हियर, 1 लिगेंड मस्ट बी हियर. ये ऑक्टाहीड्रल का कंडीशन है. तो लेट्स फोकस ऑन द वन ऑफ द एग्जाम्पल. हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe एंड वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है. अब यहाँ तो समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज देयर आर 6 लिगेंड्स आर देयर. नाउ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe atom also. I think now it is not a big issue to explain you that 3D 6 4s2 and this was the 4p that we were using it. Let's see what will happen. And even the point is that if you see they are coming in sp3d2, it's mean this particular d is not being involved. अब हमारा next upcoming 4p के बाद हमारा 4d होगा, हम वो यूज़ करेंगे. You are getting my point. We are not using 3d because it is not inner d orbitals, they are outer orbital complexes, ठीक है. So let's focus on it. So Fe atom जो है हमारा, ठीक है, 26 था ना एटॉमिक नंबर, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव कैलकुलेटेड. सो लेट्स फोकस ऑन इट. 1 2 3 4 5 and this was the 6th case. Then this part was there, 2 electrons were here. Then again we have to focus on the p parts. It's vacant, 4p is vacant, 4s is there, 3d6 is there. Let's focus on this 1 2 3 4 5 4d, right. Now see the charge on it. There are 2 electrons that are moved out. तो ये है आउटर मोस्ट पे ही, पहले यही है, तो यही दोनों जाएंगे. तो Fe+2 जब आपका आयन बनेगा तो ये तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. 4s का गया, 4p तो पहले ही खाली थे, और 4d भी आपका 1 2 3 4 5 4d भी आपका खाली था, ठीक है. एंड नाउ दिस फोकस ऑन दिस थिंग, यू आर सीइंग sp3d2. इतना आपको ये यूज़ करना पड़ेगा. ये देखो अगेंस्ट द हुन्स रूल फॉलो अप नहीं करेगा, ये हुन्स रूल को ही फॉलो करेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स अब कुछ चीज़ें नहीं होंगी. अब +3 होता तो हम कुछ दिमाग लगाते, लेकिन ओवर हियर देयर इज़ नो दिस थिंग इज़ देयर कि +2 चार्ज वॉज देयर, वी हैव रिमूव द 2 electrons. It's there the same case, and now you will see that these particular orbitals are participating in the bond formations, ठीक है. तो ये हमारे पास है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. तो हमारे पास जो है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ Fe+2 आयंस, ठीक है. तो ये आप जो आपका है, इस वैसे तो ऑलरेडी अलग ही हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. और इन्हें मर्ज कर दीजिए आप पांचों को, ठीक है. ये 4s का एक,
3pk123 और dk4, लेकिन यहाँ के डी कुछ भी अलग भी रिमेनिंग उन्हें अलग रखिए, इसे यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये अलग है, ये अलग हटे हुए हैं बिल्कुल। तो ये बेसिकली आपके क्या हैं, वेकेंट sp3d2, ठीक है, वेकेंट sp3d2 hybrid orbitals. So you can see vacant sp3d2 hybrid orbitals. ये हमारा कॉम्प्लेक्स था और ये हमारे वो थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और ये हमारे वो 6 1 2 3 4 5 और 6 और वो 3 अलग थे हमारे, ठीक है। अब इसमें कौन भरेंगे, लिगेंड्स से भरेंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स देंगे आपको, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 वाटर लिगेंड्स। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन देखो क्या क्या आया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी कि ये क्या है, पैरामैग्नेट है। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो गया इसका, पैरामैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच, 6y, 6 लिगेंड्स आर देयर। लिगेंड कैसा था, वाटर था, जो कि क्या था, न्यूट्रल लिगेंड था। बहुत इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम इट, ठीक है। स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन 6 होने की वजह से ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल बनाएगी। ये मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो डी कौन सा लिया है, हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3d2। देन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूजिंग, डी आखिरी में आ रहा है तो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए, या दूसरा नाम क्या क्या था इसमें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। 7 पॉइंट जो आपके पास आएगा इसका भैया स्ट्रक्चर बना दो, चुपचाप से स्ट्रक्चर बना देना। एफ यहाँ है या लिगेंड्स हैं, अटैच लगा दो, ठीक है। तो लिगेंड क्या थे, वाटर है, इसमें जो है वो लगा देना। एंड पुट इट हियर ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो, स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इट, वॉट एवर चार्ज इज देयर। देखो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इट्स अ 9 so it has a charge, so you have to put +2 charge. So any doubts, this way you can easily explain, this is the questions that will come. अब आपसे पूछा जाएगा how many unpaired electrons are there, go back and see 1 2 3 4, तो कितने unpaired, 8वां क्वेश्चन क्या बना, there are 4 unpaired electrons. Any doubt, I think I am not missing any question now. So this part you have to keep it in mind, hybridization everything we have discussed over here. एंड बेसिकली हाँ एक चीज़ बची है इसमें, जो डी ऑर्बिटल हमने यूज़ करा है ना, ये आउटर डी ऑर्बिटल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच आउटर डी ऑर्बिटल इज़ पार्टिसिपेटिंग, तो आउटर डी ऑर्बिटल दैट इज़ बीन पार्टिसिपेटिंग इज़ व्हाट, ओवर हियर, गो बैक एंड सी कहाँ पीछे है, उसमें हमने 4d यूज़ करा है, ठीक है, 4d वॉज देयर। अगर हम sp3d2 में देखें तो वी वर यूजिंग 4d, तो आउटर डी ऑर्बिटल 4d। तो दीज आर द 9 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो दिस वे प्लीज़ प्रैक्टिस एंड डू अदर एग्जाम्पल्स फॉर योर दिस थिंग आउटर डी ऑर्बिटल। सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू, आई थिंक नो प्रॉब्लम्स इन दिस ना, sp3d2 कुछ भी आ जाता है आपका। First, we'll focus on the next part of our valence bond theory. I have written VBT, and this few complexes were remaining, that is tetrahedral complex and the square planar complex. So let's focus on the tetrahedral complex. If you see the structure, I have made the structure. Central metal atom is placed over here. These are the ligands that are attached. ठीक है, तो structure is tetrahedral. They go for sp3 hybridization. It means how many or atomic orbitals involving 1 for s and 3 p's are involving, ठीक है, that leads to hybridization. Now coordination number will be 4 because there are 4 ligands that are participating. These ligands can be weak, they can be neutral, they can be strong, doesn't matter what the case of ligands or the nature of ligand is. I have written few examples over here and you can see these examples and you can learn them. Basically what happened, this thing you have to focus on the part
that mainly diagrams and its structures, or is hybridization is asked, or what type of nature of complex comparison to that in the octahedrals ones, ये थोड़ा easy है. And if you please focus that octahedrals, most of the board examinations octahedral complexes are asked. ठीक है. रेयर ऑफ द रेयर कोर्स होता है कि निकिल और कार्बोनाइल वाला जो आपका लिगेंड है ये वाला आ जाता है, बाकी तो इसमें कोई आए भी नहीं है अगर कभी देखा जाए तो. नेमिंग भी इसी की आई हुई है और इसी का ही दे हैव आस्क्ड यू द स्ट्रक्चर एंड ऑल. ठीक है. फोकस ऑन द निकल एटम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का एटॉमिक नंबर 28 है. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 is been there. Then you have 3d8, 4s2, और चाहो या ना चाहो, क्योंकि देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 हो गया, ये 28, राइट. सो 28 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 28 है इसका. अब यहाँ पे फोकस करो. देखो तुम्हारा ये टेट्राहीड्रल है. यू हैव टू कीप इट इन माइंड, टेट्राहीड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. ठीक है. सो यू कैनॉट यूज़ दीज टू थिंग्स. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बाहर निकालोगे, ये भी बेकार. यहाँ पे 4s है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हमें वेकेंट यहाँ 4p लेना पड़ेगा, तभी हम अपना sp3 कर पाएंगे. तो बेसिकली यू हैव टू कीप व्हेन यू सीइंग इट्स, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, लेकिन आप स्ट्रक्चर पे बेसिकली इन्हीं पे फोकस करेंगे, इन दो पे और इसके आगे वाले पर. ठीक है. क्योंकि d तो आ ही रहा है ना. 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. 4s p, 4s 4p एंड 3d8. इफ़ यू सी निकल का केस में, देखो यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल लिया है निकल का और कार्बोनाइल का, यहाँ पे निकल पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो इस पर फॉर्मल चार्ज होता है निकल पे, दैट इज़, इसमें अगर हम निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं इस वाले एग्जांपल में तो ज़ीरो आएगा. ठीक है. क्योंकि ये ज़ीरो है, न्यूट्रल ये लिगेंड ऐसा है, वैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन आप इसको देखेंगे कि इसकी जो ऑक्सीडेशन, वो जो हम याद करते थे ना सारी चीज़ें, तो उस पर ज़ीरो रहता है. ठीक है. तो ये इसमें जो निकल है, इसकी कंडीशन अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की यहाँ पे जो रहेगी वो ज़ीरो आएगी बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनाइट. अब पॉइंट इज़ दैट कि अब हम क्या करें. ठीक है. जो ज़ीरो आ रहा है अब यहाँ पे, और हमें चाहिए sp3 भी हमें यूज़ करना है. तो व्हाट इज़ द केस इफ़ यू सी निकल पे +2 होता है, अगर आपको याद हो जो फॉर्मल चार्ज है वो +2 है. ठीक है. तो उस कंडीशन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. तो और बाहर निकलना चाहिए अगर निकल के +2 आयन को हम लेके चले, लेकिन यहाँ मुसीबत क्या है कि यू आर नॉट हैविंग एनी चार्ज ओवर हियर. यहाँ +2 चार्ज है, -2 है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर. तो द पॉइंट इज़ दैट वेयर टू एडजस्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेयर टू एडजस्ट. यू कैनॉट मेक देम आउट. अगर +2 होता तो इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हम. लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन जो आ रही है ये कंपाउंड इस कॉम्प्लेक्स की, यहाँ पे निकल जो है इट इज़ शोइंग योर ऑक्सीडेशन नंबर 0. सो ऑक्सीडेशन यू हैव टू रीअरेंज दीज इलेक्ट्रॉन्स. यू हैव टू फोकस वाई दिस कंडीशन शुड बी देयर. द पॉइंट इज़ दैट जो कार्बोनाइल है वो एक बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आएगा, उसके इन्फ्लुएंस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स में ज़बरदस्ती हुंस रूल के अगेंस्ट द हुंस रूल्स पेयरिंग विल स्टार्ट. सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल जंप इट एंड कम टू दीज 4d पार्ट्स. तो बेसिकली नाउ व्हाट हैपेंड, निकल एटम आफ्टर द रीअरेंजमेंट in the presence strong इतना था. ये एक इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ यू विल गेट दिस थिंग, 4s इज़ ऑल्सो वेकेंट एंड 4p इज़ ऑल्सो वेकेंट. तो अब यहाँ पे 3d है, 4s है, 4p है. अब 3d आपका पूरा भर गया है. ठीक है. कोई डाउट्स तो नहीं है इसमें. अब ये बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन आप यूज़ कर लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ यू कैन सी sp3 hybrid orbitals of nickel. These are the vacant sp3 hybrid orbitals. Just see again in the compound, you see it's come like that, and over here this will be filled by your ligands. 4 pairs of electrons
from ठीक है, this way you can explain. Now the question and answer round starts. No unpaired electrons, it means it is diamagnetic in nature. Coordination number 4. Why? Ligands are, number of ligands are, right, 4. Then if you focus on the structure, that is टेट्राहीड्रल, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. टेट्राहीड्रल आप खुद बना लीजिए कैसे निकल है. ठीक, okay, this way you can make your complex. Any doubts? So this way you can have, because there are all the electrons are paired, that's why you put it in diamagnetic in nature. So I think this is clear. You can practice some other examples also. This is the case for your tetrahedral complexes. Class 12 will focus on this last topic, square planar complexes. If you see that hybridization is DsP2 hybridization, this you have to learn. They shows the square planar structure. Coordination number will be 4, number of ligands will be 4. This way you can draw its structure. These are certain examples which I have written for the square planar complexes. So we will focus one by one. Again I am telling you, ligands I am not focusing over here. They are strong ligand, weak ligands or neutral ligands, that we are not focusing. I am just saying that the number of ligands you will see 4. Every time you are seeing in the complexes there are 4 ligands are there. The coordination number will be 4. But you have to always keep it in mind that when you are taking a strong ligand, then in that case the condition is entirely different comparison to weak ligands as well as in the neutral ligands, which we have seen in the previous examples in octahedrals, right? So now let's focus for the first part. हम एक example यही वाला लेके चलते हैं, निकल और ठीक है, निकल एटम है यहाँ जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है. इसमें लास्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, लेकिन आई एम जस्ट राइटिंग द लास्ट पार्ट फॉर इट. ठीक है, 3d8 4s2. वी हैव सीन दिस थिंग in the early example also. So again, if you are focusing on that, just focus on the D part. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is what 4s है ना. अब देखो हाइब्रिडाइजेशन है, D भी चाहिए, S भी चाहिए, P भी चाहिए, यानी D भी चाहिए, S भी चाहिए, और हमें आगे के लिए 4P की भी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, उसको भी, क्योंकि 2P की हम लेंगे, एक S का लेंगे, ये भी खाली चाहिए हमें, और एक हमें D भी खाली चाहिए. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. नाउ लेट्स फोकस अबाउट दीज थिंग. देखो यहाँ पे -2 है, -2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इनको देखते हैं. ये जो -2 है, वैसे तो अगर आप देखो तो भैया ये अलग एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब निकल का अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपका कितना पड़ेगा. आप ये देखिए, इफ़ यू रिमेंबर x प्लस -4 -2, तो x की वैल्यू +2 हो जाएगी. निकल पे +2 अब यहाँ पे आएगा. निकल आयन इज पॉजिटिव +2. ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा था जो 3D था आपका, उसमें 8 थे. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s था, इसमें 2 थे. 4s था, ये 3D था, और यहाँ पे आपका 4p था. क्योंकि ये DsP2 है, ये दो तो चलो खाली हमें मिल जाएंगे, लेकिन S को भी खाली करना है. तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली यहाँ +2 आयन होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, खाली हो गए इस कंडीशन में. अब पॉइंट क्या है, लेकिन हमें अभी भी हमें D नहीं मिला. ऐसे तो ये sp3 दिखा रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स DsP2. नाउ from where this D will be vacant. Now focus on it. This nickel ion under the influence of strong ligand, we have a strong CN ligand is been there. तो अब क्या हो जाएगा, against the whole rules pairing will start. Already this has been there. अब ये ज़बरदस्ती इनके पास आ जाएंगे. अब हमें vacant मिल गया. Now we have got the vacant part, so you can easily use these things. What? DsP2 और 4 है, 1 2 3 4. कोऑर्डिनेशन 4 है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन जाएगा. ठीक है. Now this thing is clear to you all. Now DS
sp2 hybrid orbital in nickel ion. अलग अलग कर लीजिए सबको, जैसे every time we are doing. So this particular 4 part is separated here, and these are merged together because these are 1d and 1s and 2p's are there. So this you are merging, so this is the vacant dsp2 hybrid orbitals, and these things, these twos are this single one is remaining which we are not using for the piece. इसको अलग रखिए, हम रखते ही हैं. अब बेसिकली क्या है कि ये तो हमारा एज इट इज़ कमिंग लाइक दैट ओनली, and these things will be occupied what by your ligands. If you remember, we have how many? 4 pairs, 4 pairs of electrons from 4 CN ligands. This you can take it as a vacant, and over here if you remember we always write down the hybrid orbitals in the particular complex what you are using. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अराइजेस, क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, नंबर ऑफ लिगेंड्स 4, magnetic nature, it's diamagnetic in nature because all are unpaired electrons. Then it's coming in your square planar. Why? Because hybridization is what? dsp2. स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, निकल cn 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 ब्रैकेट क्लोज. इसको चाहो तो इसे बंद कर देना. ब्रैकेट क्लोज मैंने क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे याद करो जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें चार्ज चढ़ा हुआ था -2. जो कॉम्प्लेक्स था ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, तो ये -2 चार्ज तुमने इस पर लगाया हुआ था. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वे यू हैव टू राइट डाउन. आई थिंक नो डाउट्स ओवर हियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. टेट्राहीड्रल वर्ड आप लिख देंगे, सॉरी आप स्क्वायर प्लेनर आप लिख ही देंगे. ठीक है. तो आई थिंक दिस वे यू कैन डू. प्लीज़ फोकस ऑन द अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जहाँ पे आपके आप न्यूट्रल लिगेंड्स या वीक लिगेंड्स लें, बुक्स में अवेलेबल है. सो फोकस ऑन दैट. वी हैव कवर दिस पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. आई थिंक नथिंग इज़ लेफ्ट ओवर या फ्यू लिमिटेशंस हैं, तो यू कैन सी ऑन द लिमिटेशंस के बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स की एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स दे कुड नॉट एक्सप्लेन इट. Then there were certain other limitations also that regarding the it cannot explain the splitting of d orbitals of the central metal atoms when ligands approach to it. वो आगे की बात थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो सब एक्सप्लेन करा गया था, लेकिन फ्रॉम दिस ईयर दैट पोर्शन इज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस. so you are lucky that that portion is been reduced from your syllabus, so you can focus on the limitations parts of valence bond theory also. And few I have explained you, there are other other limitations also which you can focus from your book also.